herbarium or famous herbarium of the world. Okay. Yes, sir. Okay. There are many. I'm just going to give you 3 or 4 names, which is very famous. Some famous herbarium of the world. The first and most important or the largest herbarium is the first largest herbarium is Royal Botanical Garden. Royal Botanical Garden. It has botanical garden also, and it is a herbarium also. Okay. It is the largest herbarium, we can say. Largest all over the world, largest herbarium, and it is situated in where? London. Here, London. It contains around 6.5 million of species of plants. Around what? 6.5 million of plant species. Yeah, plant specimens. Okay? Yes, sir. Yeah. The second one, it is in India. Largest one we can say also. Largest one in India is Madras Herbarium. Madras Herbarium. Okay. It is in Coimbatore. It is where? Coimbatore, Kolkata. Sorry, Coimbatore. It is in. It contains around 15, 1,005. Sorry, 1,50,000 species. It contains 1,50,000 species. Yeah, plant specimen. Okay, plant specimen. See, it is difficult to remember the numberings, so you have to remember every single numbering. Okay, and there are very few I am writing and which are important ones. So first one is all over the world सबसे famous और सबसे बड़ा herbarium कौन सा है? Royal Botanical Garden, which is in London, and it contains around 6.5 million of plant specimens collected from all around the world. Second one Madras Herbarium जो कि इंडिया के कोयम्बटूर में है, and the third one we can see we can visit also Natural Botanical Research Institute, which is in Lucknow. Natural Botanical Research Institute. It is in Lucknow. It is not that far, and we can visit Lucknow. Okay, and it contains around 80,000 of species, and more or less 80,000 species of plant are there. Okay, plant specimen. These three are just enough for you to remember. Okay, and there is an institute or we can say organization which look after all the activity of herbariums which are going all over India. इंडिया में एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन भी है, वी कैन से बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि हेडक्वार्टर कोलकाता में सिचुएटेड है, एंड दैट हेडक्वार्टर लुक्स आफ्टर एवरी सिंगल एक्टिविटी ऑफ हर्बेरियम इंस्टीट्यूट और हर्बेरियम सेंटर जो कि जहां जहां प्रेजेंट है इंडिया में. वी कैन से कि वो एक कीप ऑन आई रखता है हर सेंटर पे और एक तरह से क्या कहते हैं अपना उस पर रूल एंड रेगुलेशन फॉलो कराता है. ठीक है, ये जस्ट इसलिए है क्योंकि प्लांट स्पेसिमेन और वेल्थ ऑफ प्लांट का कितना इंडिया में प्रेजेंट है इस पे चेक ऑन करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है और वी कैन से हेडक्वार्टर्स है जिस कोलकाता में, जो कि सिर्फ मेनली इसीलिए बनाया गया कि प्लांट के वेल्थ को इंडिया में चेक ऑन किया जा सके. ओके, इट इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. इट इज यूजली आस्क्ड इन जनरल नॉलेज क्वेश्चंस. ऑर्गेनाइजेशन है कहाँ पे? कोलकाता में. सिचुएटेड इन कोलकाता. ये हेडक्वार्टर्स भी बोल सकते हैं हम लोग. हेडक्वार्टर्स ऑफ व्हाट? एवरी हर्बेरियम और प्लांट स्पेसिमेन के जितने टैक्सोनॉमिकल एड्स होते हैं उसका हेडक्वार्टर. ठीक, किस पे चेक ऑन करता है? टू चेक ऑन प्लांट वेल्थ इन इंडिया. इंडिया में प्लांट की कितनी प्लांट वेल्थ को चेक ऑन करने के लिए इंडिया में प्लांट्स का क्या पोजीशन है, हाउ डिफरेंट काइंड ऑफ plants are there, how many varieties are there, just to keep an eye on all of these things. An organization is there which is situated in Kolkata, which is also called as the headquarter of every herbarium, museum or botanical gardens in India. Okay, now we will come to the next point, that is botanical gardens. Botanical gardens. What do you understand by botanical gardens? Plants garden, where all the species are found. हाँ, प्लांट्स के गार्डन्स तो होते ही हैं, लेकिन इसमें क्या रहता है? लिविंग प्लांट्स रहते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बोटानिकल गार्डन्स का? इट इज कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट. कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स. लिविंग प्लांट्स. बोटानिकल गार्डन्स में लिविंग प्लांट्स के कई सारे कलेक्शंस रखे जाते हैं, नॉट वन नॉट टू. मिलियंस ऑफ कलेक्शन are used to place in a botanical garden, and usually botanical gardens को institutes and organizations में भी रखा जाता है for their study purpose. Okay, also kept in universities and educational or we can say research institutes. Okay, यहाँ पे रखा किस लिए जाता है? For study purpose, for reference purposes. Second, third most important point botanical gardens की ये है कि
जब भी बोटेनिकल गार्डन कोई भी सेटअप होता है, दे आर सेटअप along with their scientific name. मीन्स कि कोई भी प्लांट अगर बोटेनिकल गार्डन में रखा गया है तो उस प्लांट के आसपास उस प्लांट का बोटेनिकल नेम जरूर लिखा रहेगा along with their botanical name. ओके, कोई भी प्लांट अगर रखा गया है किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो उस यूनिवर्सिटी में उस प्लांट के आसपास या उस जगह के आसपास उसका बोटेनिकल नाम जरूर इंग्रेव्ड होगा या उसके बगल में लिखा हुआ होगा. ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बोटेनिकल गार्डन के लिए कि कभी भी कहीं भी अगर ये बोटेनिकल गार्डन सेटअप किया जाता है तो उसमें बोटेनिकल नेम उसका जरूर रहेगा फॉर देयर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग. बोटेनिकल गार्डन में these 3 points are most important. And what is their role? What is the role of botanical garden? What is the role? Can you say any one of the role, Sana? No, ma'am. ओके, बोटेनिकल गार्डन क्यों सेटअप किए जाते हैं? फर्स्ट इज फॉर रिक्रिएशन पर्पस. बहुत सारे लोग आते हैं म्यूजियम या गार्डन्स में, उसमें आते हैं देखने घूमने. ठीक है, फर्स्ट इज फॉर रिक्रिएशन पर्पस, रिक्रिएशनल पर्पसेस. ओके, second one is what? For study purposes, to study every kind of plant specimen. Okay, to study purpose. Okay, the third one is what? Wide variety of plants and animals, wide variety of plants grew, and every plant has important role, so they provide aesthetic and economic importance to the environment. To study that aesthetic and economic importance, क्या करते हैं? botanical gardens को सेटअप किया जाता है. Okay, to study aesthetic and economic importance. Okay, Yes, ma'am. importance. लास्ट वन, प्लांट्स को हमेशा हम लोग सुनते हैं ना, प्लांट्स लगाओ. तो प्लांट लगाने पे क्या होगा? इन्वायरमेंट सेव होगा. तो वी कैन ऑल्सो क्रिएट इन्वायरमेंट विद विच इज पॉल्यूशन फ्री, क्रिएट पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट. हैबिटेट में भी रहेगा, अपने एरिया में भी रहेगा, और उस जगह के इन्वायरमेंट भी क्लीन एंड सुंदर लगेगा ओवरऑल. टू लास्ट वन इज व्हाट? टू मेंटेन एन अट्रैक्टिव and pollution free area. Okay, Yes, ma'am. yes. Last one but not the least, if we are growing any plant, जब भी किसी भी प्लांट को लगाते हैं वो सीड तो देगा ही देगा. तो फॉर क्विक कलेक्शन ऑफ सीड ऑफ वेरियस काइंड ऑफ प्लांट, जो कि एक ही जगह पे हमें मिल जाएगा, तो उसके लिए भी क्या है? रोल ऑफ बोटेनिकल गार्डन, यानी कि उसके लिए बोटेनिकल गार्डन इंपॉर्टेंट है. ओके, टू कलेक्ट वेराइटी ऑफ सीड्स फ्रॉम वन प्लेस. एक ही जगह से हम लोग सीड की बहुत सारी वैरायटी ले सकते हैं थ्रू बोटेनिकल गार्डन्स. हैव यू अंडरस्टूड व्हाट इज द रोल ऑफ बोटेनिकल गार्डन? क्यों हम लोग बोटेनिकल गार्डन को लगाते हैं और क्या इसका इंपॉर्टेंस है? Yes, ma'am. ओके, नाउ अगेन सम इंपॉर्टेंट बोटेनिकल गार्डन्स. वी विल स्टडी सम इंपॉर्टेंट बोटेनिकल garden. Okay, again I have is first written Royal Botanical Garden, which contain the herbarium. Royal Botanical Garden, it is also a botanical garden. See, usually what happens कि botanical garden अगर setup हुआ है तो उसमें laboratories भी setup होती हैं, उसमें herbarium भी setup होता है, उसमें museums भी setup होते हैं for large study purposes. Okay, so Royal Botanical Garden has herbarium also, it has laboratory also, it has museum also. इस वजह से इसका नाम बहुत important है. For this reason also, it is the biggest, largest herbarium collector also. Okay, it is situated in Kew, London. Second one, coming back to India. India has National Botanical Research Institute. National Botanical Research Institute. I think this two is enough. Lucknow, India. Okay. Ma'am, what is the meaning of Kew? Kew is a state name. London is the country name, and Kew is a state name. Okay. Yes, ma'am. Yeah. I think I haven't told you about the use of herbarium. Have I told you about that? I haven't, no? Yes, ma'am. Have I told you about the use of herbarium? Importance or use of herbarium, या role of herbarium? Okay, let me tell you. I think I just forgot. Role of herbarium. What is the role of herbarium? We collect the herbarium, we keep it safely. For what purpose? There are certain roles of herbarium. ना herbarium play very important role. क्यों? क्योंकि ये plant के identification में बहुत quickly help करता है. Means if we want to identify any plant, we just take out a sheet and उस sheet पे दी गई सारी info हमें बता देगा कि ये plant किस variety का है, किस family का है, कहाँ से लिया गया है, किस जगह ये आसानी से पाया जाएगा. ये सारी चीजें किससे मिल जाएंगी हमें? herbarium की एक sheet से. So first is identification of plant. बहुत अच्छा role play करता है. Important role in plant identification. Okay. Second role is what? अभी we will study about this key, flora, catalogs, monologues ना.
So these catalogs, monologues और flora, these are made with the help of what? Herbarium. Herbarium sheet को ही पढ़ के ये catalogs, monologues और keys बनाए जाते हैं. Okay, compilation, we can say compilation of these catalogs, manuals, flora, catalogs, manuals, flora are made by the help of herbarium only. Okay, जब भी कोई हर्बेरियम शीट को देखना है, मतलब मीन्स बाय स्टडीइंग द हर्बेरियम शीट ऑफ वेरियस प्लांट स्पेसिमेन, उसके बाद ही कैटलॉग और या मोनोलॉग्स कह लो या वी कैन से फ्लोरा कह लो, और ये जितने मैनुअल्स होते हैं फॉर प्लांट के स्टडी के लिए, वो सब बनाए किससे जाते हैं? बाय स्टडीइंग द हर्बेरियम शीट ऑफ डिफरेंट प्लांट स्पेसिमेंस. ओके, द थर्ड वन इज व्हाट? ये हमें तुरंत बता देंगे कि कोई भी एक हम हर्बेरियम शीट को उठाएंगे और दे विल टेल अस एग्जैक्टली व्हाट इज द लोकेशन ऑफ दैट प्लांट स्पेसिमेन, and we don't have to search that plant. We can go exactly to that place and pick up that plant. इतनी भी वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स जो मिलती हैं, वो वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स भी हमें बाय लुकिंग एट द हर्बेरियम शीट हमें तुरंत पता चल जाएगा कि ये वाइड वैरायटी हमें किस फॉरेस्ट पे मिलेगी, किस प्लेस पे मिलेगी. ओके, सो दे आर यूजफुल इन giving locations to wild variety of plants, wild varieties of plants. Next is what? They are also help in morphological variation, means कि एक प्लांट दूसरे प्लांट से किस तरह डिफर करता है, इस चीज के स्टडी में भी हर्बेरियम शीट्स मदद करती हैं. ओके, ऑल्सो मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज में भी क्या मदद होती है? हर्बेरियम शीट्स मदद करती हैं प्लांट की स्टडी करने के लिए. ओके, दीज आर द इम्पोर्टेंट रोल्स दैट अ हर्बेरियम शीट प्लेस या हर्बेरियम म्यूजियम प्ले फॉर स्टडी पर्पस. ओके, या अब तुम बताओ कौन कौन से रोल थे? 4 रोल मैंने बताया, एटलीस्ट 2 यू कैन टेल मी. Study about plant specimen, wide variety of plants. Okay, that is nice. Wide variety of plant specimen को पढ़ने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है हर्बेरियम को, वो ये है कि जो फ्लोरा, कैटलॉग और मैनुअल्स बनते हैं वो हर्बेरियम शीट को स्टडी करके ही बनते हैं. ओके, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल ऑफ हर्बेरियम शीट और हर्बेरियम म्यूजियम. ओके, द थर्ड वन इज गोइंग टू स्टडी अबाउट म्यूजियम्स. Have you been to any museum? Yes, Sana? Yes, ma'am. Yeah. तो म्यूजियम में क्या रहता है, सना? मैम, बट प्लांट म्यूजियम में नहीं रहते. हाँ ठीक है, बट म्यूजियम में रहता क्या है? Have you been to? जो भी पहले की टाइम की जो भी वस्तुएं थी वो रहते हैं, जैसे कि बुद्धा के टाइम की जो भी अशोक चक्र वगैरह ये सब थी वो देख सकते हैं. कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड थिंग्स रहते हैं ना. म्यूजियम किस लिए बनाया जाता है? जो पुरानी चीज है उनको भी प्रिजर्व कर सको और जो नई नई चीज है उनको भी प्रिजर्व कर सको. ठीक है, कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड थिंग इज व्हाट? म्यूजियम. म्यूजियम इसीलिए बनाया जाता है. सो प्लांट और एनिमल म्यूजियम इज ऑल्सो देयर. एनिमल इन द सेंस कि डेड स्मॉल ऑर्गेनिजम्स आर केप्ट. ओके, सो म्यूजियम में क्या होता है? ये प्लेस है. इट इज अ प्लेस व्हाट प्लेस फॉर कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल. प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज या स्पेसिमेन. ओके, ये जरूरी नहीं है कि पुराने प्लांट्स एंड एनिमल्स हो, नए भी हो सकते हैं. जस्ट देयर मेन मोटिव इज टू प्रिजर्व दीज प्लांट एंड एनिमल फॉर देयर स्टडी पर्पस, फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस. ओके, प्लांट एंड एनिमल को जिस प्लांट्स को हम लोग हर्बेरियम शीट्स में नहीं कन्वर्ट कर सकते, लाइक बिग ट्रीज, लाइक फर्न्स एंड मॉसेस, लाइक फर्न्स मॉसेस और एल्गी. ओके, एंड एनिमल्स को तो हम लोग कभी भी हर्बेरियम शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते ट्राई करके. सो दीज आर जिसको हम लोग हर्बेरियम शीट में नहीं कन्वर्ट कर सकते, दे आर केप्ट इन म्यूजियम्स. और म्यूजियम्स में सिर्फ ऐसे स्ट्रेट अवे नहीं रख देते हैं. दे आर म्यूजियम्स में केप्ट इन प्रॉपर सॉल्यूशन एंड प्रॉपर कंटेनर. दे आर केप्ट लाइक व्हाट? इन सॉल्यूशंस. सॉल्यूशन व्हाट सॉल्यूशन? प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन. Have you been to biology lab in your school? No, ma'am. Okay, in container. So जो preservation solution रहता है, that is formalin. Formalin used होता है solution को preserve करके रखने के लिए. Whenever you will visit the bio lab, every school has that lab ना. So it is like that kind of container. ऊपर नीचे दोनों से locked रहता है, and in between this cylinder structure, the given animal or plant specimens are kept. Or like this octopus structure, a baby octopus we can say. इसका structure ऐसे formalin solution में dead, it is the dead organism. ओके, डेड एनिमल्स और डेड प्लांट स्पेसिमेन को फॉर्मेलिन के सॉल्यूशन में ऐसे कंटेनर में क्लोज करके रखा जाता है. सो दीज काइंड ऑफ कंटेनर्स आर केप्ट इन व्हाट? म्यूजियम. आर केप्ट इन म्यूजियम. Not only this kind of containers are there,
Museum contains also what? Museums contains big animal skeletons also. Animal skeletons, large plants or trees. Okay, so सिर्फ ये small organisms नहीं, large we can say cycas plant specimen और any tree specimen, that specimen भी museums में रखे जाते हैं in a short way. जैसे कि छोटे छोटे plants, mango tree, for if we take an example of mango tree, so mango tree का छोटा version एक museums में रखे जाएंगे for their study purpose and for their preservation. We keep them in preservative solution and अच्छे से उसको सील करके रखा जाता है. एंड जो बिग बड़े एनिमल्स या बड़े जानवर होते हैं तो उनका मोस्ट प्रोबेबली स्किन रखा जाएगा, एनिमल स्केलेटन रखा जाएगा, देयर टीथ कैन बी केप्ट एंड देयर यूजफुल body part can be kept for study purpose. So museum contains all the study materials or all the main hard part of the plant and animal organisms जिसको हम लोग ड्राई नहीं कर सकते एंड जो कि हम लोग शीट्स में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं. That things are kept where? In museums. Okay, understood? Yes, ma'am. Yes. Now some important museum names. Some museums name. First one is American Museum of Natural History. It is in New York, USA. Okay. First word is what? American Museum of Natural. This is just for the information. These question doesn't usually come in exam. Okay. जो exams, जो questions NEET exam में बहुत important है, मैं उसको already तुम्हें specify कर दूंगी. Okay. New York, USA. Second one we can take Museum of Arthropoda. Only arthropods are there. Museum of Arthropoda. Do you know what is arthropoda, Sana? No, ma'am. Okay. Arthropods are insects. Every single insects are included in what? Arthropods. Sorry, I'm writing also insect. Like cockroach, we can say silverfish, that is also an insect. Any insect you can name, that insect will be included in arthropoda. Okay. There is also a museum in Mumbai. Museum Prince of Wales Museum. Prince of Wales Museum. It just, the name is given like this. It is situated in Mumbai, India. Okay. If you want to remember any name, just remember this one. Okay. It is the most important American Museum of Natural History. I haven't written Natural History. It is the largest museum, one can say, and it is situated in New York, USA. Next is Zoological Park. The fourth is what? Zoological Park. Zoological Park. Have you been to any zoo? Lucknow. Zoo में गई हो? कितने सारे type of animals दिखते हैं? Zoological parks are what? Basically zoo. You can say in short, these are zoo. Zoo में क्या होता है? Various type of animals are kept in their natural environment. सबसे most important point है zoological park का. Animals are kept in their natural environment. Animals are kept in their natural environment. बस एनिमल्स को क्या किया जाता है? उनकी जगह से ले जाके एक नेचुरल इन्वायरमेंट में डाल दिया जाता है. फिर सेकेंड पॉइंट, अंडर ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन ऑफ हू? ह्यूमन ऑब्जर्वेशन. ओके, अंडर ह्यूमन ऑब्जर्वेशन. अगर जू में गई हो सना तो फिर यू हैव सीन ना दैट एक पर्टिकुलर जानवर के लिए पर्टिकुलर स्पेस और पर्टिकुलर जगह बनाई गई है, उसके आसपास उतनी रेलिंग्स होती हैं, उतना लॉक होता है, सो दैट उसके अलावा और कोई टाइप का स्पीशीज या ऑर्गेनिज्म उस एरिया में ना जाए. ऐसा हुआ है ना जू में. सो जू किस लिए होता है? जू इसलिए होता है कि उन एनिमल्स एंड प्लांट्स, प्लांट्स नॉट, एनिमल्स को स्टडी किया जाए, उनके नेचुरल हैबिटेट को स्टडी किया जाए, उनके नेचुरल बिहेवियर को स्टडी किया जाए और उनको फूड और फीडिंग बिहेवियर और अच्छा बनाया जाए. अच्छा बनाना इन द सेंस सो दैट जो इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, जिनका एक्सटिंक्शन बहुत जल्दी होने वाला है नियर फ्यूचर में, उनको भी बचाया जा सके. नेचुरल एनवायरनमेंट पे रख के, ह्यूमन के अंदर ऑब्जर्वेशन में रख के, उनको अच्छा खाना और अच्छा सेहत बना के. ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट? They are kept in their natural environment under human observation to improve food and breeding habit, to protect endangered species. जितने भी स्पीशीज को एक्सटिंक्शन का खतरा है, उन सारे स्पीशीज को भी बचाना, उन सारी स्पीशीज की फूड एंड ब्रीडिंग हैबिट को बढ़ाना, इंप्रूव करना, ये भी एक जूलॉजिकल पार्क का पर्पस है. ओके, अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes. And these zoos are managed by what? Zoos are managed by Zoo Authority, or we can say Central Zoo Authority of India.
लाइक व्हाट प्लांट अथॉरिटी कोलकाता में जैसे प्लांट स्पेसिमेन के वेल्थ को चेक ऑन करती है, जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया आल्सो चेक ऑन द एनिमल वेलफेयर और एनिमल वेल्थ। ओके, अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब इंडिया की बात हुई है, लेकिन वर्ल्ड के जू को कौन चेक करता है? वर्ल्ड जू कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी। वर्ल्ड जू कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी ये क्या करता है? चेक ऑन करता है वर्ल्ड के एनिमल वेलफेयर पे। चेक ऑन द वर्ल्ड्स एनिमल वेलफेयर। ओके, रोल ऑफ द जूलॉजिकल पार्क। व्हाट इज द रोल? रोल ऑफ जूलॉजिकल पार्क। अब एक रोल तो तुम बता ही सकती हो सना। व्हाट इज वन रोल दैट यू कैन टेल? जू किस लिए होते हैं? मैंने सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, हाँ फॉर स्टडी पर्पस। हाँ, स्टडी पर्पस के लिए तो फॉर श्योर, स्टडी पर्पस के लिए ही टैक्सोनॉमिकल एड्स बनाए गए हैं। बट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट? फॉर देयर कंजर्वेशन ऑफ थ्रेटेंड एंड रेयर एक्सटिंक्ट स्पीशीज। जो इंडेंजर्ड स्पीशीज होते हैं, जिनका फ्यूचर में एक्सटिंक्ट होने का ज्यादा खतरा है, उनकी कंजर्वेशन के लिए जूलॉजिकल पार्क बनाए गए हैं। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ जूलॉजिकल पार्क। व्हाट? फॉर कंजर्वेशन मतलब उनका बचाना। कंजर्वेशन ऑफ रेयर एंड endangered species। Okay, second one is what? Entertainment purpose और educational purpose के लिए भी तुम ले सकती हो। For educational and recreation purpose, because school से tour and sort of thing जाता है ना for students के लिए, so that they can learn and see। पिकनिक वगैरह पे भी टीचर्स बच्चों को लेके जाते हैं। For what? So they can learn and see their natural habitat and how are animals living in their environment। Okay, also they are site of XC2। Now what is XC2? XC2 मतलब है outside their natural environment, outside the natural environment। क्योंकि यूजुअली जितने भी एनिमल्स रखे जाते हैं वो तो अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में नहीं है, तो XC2 मतलब क्या है? नेचुरल इन्वायरमेंट या ओरिजिनल इन्वायरमेंट में नहीं है, और उन लोग को अपने ओरिजिनल जगह से हटा के किसी और जगह रखना, नेचुरली ओनली, उसको हम लोग बोलते हैं XC2। XC2 मीन्स व्हाट? कि टेकिंग द एनिमल्स आउट फ्रॉम देयर नेचुरल और ओरिजिनल प्लेसेस इनटू सम अदर इन्वायरमेंटल प्लेसेस। ओके, उसको बोलते हैं XC2। एंड these zoological parks are what? They are site of XC2 conservation। जो भी इंडेंजर्ड स्पीशीज एक्सटिंक्ट के उस पे हैं, उनको उनके जगह से हटा के एक अलग सी जगह में लाया जाता है, उनको अच्छा केयर मिलता है, अच्छा फूड एंड ब्रीडिंग हैबिटेट बनाते हैं फॉर देयर कंजर्वेशन। ओके, सो दैट दे कैन लिव मोर, दे कैन ब्रीड मोर एंड दे कैन प्रोड्यूस मोर। नाउ दिस मच इज अबाउट जूलॉजिकल पार्क, म्यूजियम, herbarium, and one more is there, what? Botanical garden। Okay, now we come to the main area of this। Okay, we have studied about herbarium। what is herbarium? क्यों बनाया जाता है, क्यों रखा जाता है? herbarium sheets को प्रिजर्व किया जाता है to study wide varieties of plant specimen, जिससे हम लोग फ्लोरा, मैनुअल्स, कैटलॉग्स ये सब भी बना सकें। नेक्स्ट इज व्हाट? बोटेनिकल गार्डन। ये क्या है? स्पेशलाइज्ड गार्डन्स होते हैं। स्पेशलाइज्ड गार्डन्स हैं जिसके पास लिविंग प्लांट्स रहते हैं। रेफरेंस के लिए लिविंग प्लांट्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट हियर, कि बोटेनिकल गार्डन कंटेन्स लिविंग प्लांट्स। फॉर व्हाट? आइडेंटिफिकेशन पर्पस, एजुकेशनल पर्पस, आइडेंटिफिकेशन पर्पस, और वी कैन से एजुकेशनल पर्पस और स्टडी पर्पस के लिए भी बोटेनिकल गार्डन्स को रखा जाता है। सी दिस इज द बोटेनिकल गार्डन इज एन एग्जांपल, एंड हियर यू कैन सी आल्सो कि कोई एक बोटेनिकल गार्डन है एंड इट इज बीइंग गिवन द नेम आल्सो समवेयर और द अदर। जितने भी यहाँ प्लांट स्पेसिमेन होंगे उसके आसपास ऐसे नेम उसका दिया होगा। ओके, म्यूजियम इज व्हाट? इट इज अ प्लेस फॉर कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंसेस। प्लांट्स जिसको हम लोग हर्बेरिया या हर्बेरियम में नहीं रख सकते उसको भी यहाँ रखा जाता है। सी दिस इज अ बिग प्लांट ऑफ वी कैन से जिम्नोस्पर्म, साइकस और पाइनस का प्लांट यहाँ, जिसको हम लोग ड्राइड करके शीट्स में नहीं प्रिजर्व कर सकते, वो सब टाइप के प्लांट यहाँ रखे जाएंगे। एनिमल स्पेसिमेन के स्केलेटन्स रखे जाते हैं। एंड सी हियर आल्सो some museum information are also given in this figure। you can see plant specimen के twigs रखे गए हैं, more plant के stems रखे हुए हैं। तो ये सारी चीजें क्या है? स्टडी पर्पस के लिए है। ओके, नेक्स्ट इज zoological park। we have studied these are places where wild animals, I have already told you, protected environment में रखे जाते हैं ह्यूमन केयर के साथ। इसलिए ताकि उनकी फूड और ब्रीडिंग बिहेवियर, उनके हैबिटेट को जान सके और अच्छे से उनको नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सके। क्यों? क्योंकि उनको कंजर्व करना है। मोस्टली जितने भी जूलॉजिकल पार्क्स बनाए जाते हैं दे आर मेड
इन विद रेफरेंस टू व्हाट, कि कौन से एनिमल का एक्सटिंक्ट होने का खतरा ज्यादा है, उसको हम लोग और प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट रख के उसकी ब्रीडिंग कैपेसिटी बढ़ा सके, सो दैट उसकी एक्सटिंक्शन का खतरा कम हो जाए। ओके, इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम जूलॉजिकल पार्क्स प्रिपेयर किए जाते हैं। सी दीज काइंड ऑफ एनिमल्स आर केप्ट, उनको नेचुरल एनवायरनमेंट में रखा जाता है ओवर अ रेंज ऑफ एरिया, उनको पर्टिकुलर रेंज ऑफ एरिया दिया जाता है और उतने एरिया के बाहर फिर रेलिंग या कोई प्रोटेक्टेड डोर या रेलिंग लगाई जाती है, सो दैट ह्यूमन कॉन्टैक्ट ना हो पाए विदाउट एनी ट्रेनर। ओके, अब आती है ये अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस ऑफ प्लांट्स या रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस। ओके, ये जितने भी हम 4 पढ़े हैं, हर्बेरियम, बोटैनिकल गार्डन्स, म्यूजियम एंड जूलॉजिकल पार्क, देयर आर मेजर मीन्स कि हम लोग प्लांट को कैसे, उनके प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज को उनका डिस्क्रिप्शन और उनकी चीजों को रिकॉर्ड करके रख सकें। अदर मीन्स ऑफ व्हाट, फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग। ये सारी जो 4 चीजें हैं, ये लोग इन्हीं 4 चीजों को देखकर स्टडी करके बनाई जाती हैं फॉर व्हाट, इजी पर्पस, इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। लाइक फ्लोरा, फ्लोरा कंटेन्स व्हाट, एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑफ अ गिवन एरिया। एक एरिया में कितने प्लांट स्पेसिमेन हैं, उनका क्या नेचर है, वो कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, एंड व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक, ये सारी चीजें फ्लोरा में बनाई जाती हैं। एंड फ्लोरा को कैसे बनाया जाता है, फ्लोरा को बनाया जाता है बाय यूजिंग, फ्लोरा आर मेड बाय यूजिंग हर्बेरियम शीट्स। ओके, हर्बेरियम शीट्स को पढ़ के उनसे इंफॉर्मेशन लेके फ्लोरा आर मेड। नेक्स्ट में हम लोग कह सकते हैं कि फ्लोरा में क्या क्या इंफॉर्मेशन रहती हैं, इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन लाइक, इंक्लूड्स इन्फो लाइक व्हाट इज देयर डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट, कहाँ कहाँ वो मिल सकता है। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन, उनका हैबिटेट क्या है, प्लांट का क्या हैबिटेट है, ठीक, उनका टैक्सॉन क्या है, फैमिली नॉलेज, फैमिली क्या है। ओके, ये सारी इन्फो कहाँ से मिल सकती है, हमें फ्लोरा से मिल सकती है। नेक्स्ट इज मैनुअल्स, नेक्स्ट इज मैनुअल्स। Manuals are what, they are useful in providing information for identification of names of species found in an area. कोई भी manuals को just for study purpose बनाया जाता है, so that any outsider or any scientist or any biologist or anyone want to refer any plant or plant specimen, so वो क्या कर सकता है, just कोई एक मैनुअल उठाए किसी भी फैमिली का, उस मैनुअल में उसको जिस प्लांट के बारे में पढ़ना है वो उस प्लांट के बारे में डायरेक्टली पढ़ सकता है एंड डायरेक्टली उस प्लांट के पास पहुंच सकता है विदाउट वेस्टिंग मच टाइम एंड एनर्जी। इसलिए मैनुअल्स को बनाया जाता है। प्रोवाइड इन्फो ऑफ व्हाट, प्रोवाइड इन्फो ऑफ नेम्स ऑफ प्लांट, नेम्स ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स फाउंड इन एन एरिया। किसी भी एरिया में कितने प्लांट स्पेसिमेन हैं उसको बताने के लिए मैनुअल्स का यूज होता है। ओके, द थर्ड वन इज व्हाट, मोनोग्राफ्स। मोनोग्राफ्स, व्हाट डज मोनोग्राफ कंटेन, इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सॉन। उनका बस एक ही काम है, इन्फो रखना किस पे, कोई एक टैक्सॉन में, इन्फो ऑन एनी वन टैक्सॉन। और ये सारी चीजें हर्बेरियम शीट्स को या हर्बेरियम के पूरे म्यूजियम को पढ़ के ही बनाई जाती हैं। ये सब सिर्फ किस लिए होता है, रेफरेंस के लिए। कोई एक मोनोग्राफ उठा के देख लो तो उसको एक पर्टिकुलर टैक्सॉन में कितने स्पीशीज हैं या एक पर्टिकुलर टैक्सॉन में क्या क्या है उसको इन्फो मिल जाएगा। द लास्ट वन इज कैटलॉग। कैटलॉग इज व्हाट, स्मॉल बुकलेट है। जैसे हम लोग कोई भी चीज का देखते हैं ना कि व्हेन वी सी द कैटलॉग देन वी चूज एनी डिफरेंट काइंड ऑफ सूट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग शॉपिंग में जा रहे हैं तो मोस्टली क्या करता है, हम लोग को कैटलॉग दिखाया जाता है कि किस स्टाइल का चाहिए, किस कलर का चाहिए। तो सेम वे प्लांट स्पेसिमेन में भी कैटलॉग बनाई जाती हैं बोटेनिकल टाइटल्स को देके, उन लोग का ऑथर्स को लेकर, उनका पब्लिकेशंस को लेकर के, सो दैट अगर हमें किसी बुक को पढ़ना है या किसी पर्टिकुलर प्लांट स्पेसिमेन के बारे में और नॉलेज जानना है तो उस प्लांट स्पेसिमेन को किस साइंटिस्ट ने खोजा है या किस ऑथर ने इसके बारे में क्या लिखा है, वो सारी चीजें एक कैटलॉग में हमें मिल जाएंगी। ओके, हियर इट इज व्हाट, बुकलेट। बुकलेट ऑफ बोटेनिकल टाइटल्स, रेफरेंसेस एंड ऑथर्स एंड देयर पब्लिकेशंस। इस ऑथर ने इस बुक के बारे में क्या लिखा है, उनकी क्या पब्लिकेशन है, ये सारी चीजें कैटलॉग में मिल जाएंगी। ओके, टिल नाउ हैव यू अंडरस्टूड एवरीथिंग व्हिच आई हैव टॉट? मोनोग्राफ, फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ, कैटलॉग, एवरीथिंग? Okay, now coming to the last point, your last topic, key. What is a key? Key is also important point, like zoological park or something. We have studied zoological park, botanical gardens, and herbarium. That way, key is also an important taxonomical aid. So we will study about key. What is a key? Literal meaning तो इसका यही होगा चाबी, but here key is used for different purpose. Key is what? It is taxonomical aid. It is used for what? Identification of plant and animal. इस आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, उनकी सिमिलैरिटी और उनके डिफरेंसेस को देख के हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं प्लांट्स
और एनिमल्स को, उसमें ये की में लिखा रहेगा कि दिस प्लांट इज डिफर टू दिस प्लांट विद रिस्पेक्ट टू दिस थिंग। ठीक है, कि एक प्लांट या एक कोई प्लांट स्पेसिमेन दूसरे प्लांट स्पेसिमेन से किस बेसिस पे डिफर करता है और इसमें क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं, ये सारी चीजें की में लिखी रहती हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, टेलिंग और वी कैन सी comparing would be the most appropriate, comparing the similarities and dissimilarities, सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी को स्टडी करने के लिए, प्लांट और एनिमल्स को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए की का यूज होता है। ओके, जनरली कीज आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस ओनली, कि एक प्लांट को दूसरे प्लांट से क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिसिमिलैरिटी है उनमें, ये जानने के लिए की का यूज होता है। एंड नाउ की जनरली दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेके करेगा, मीन्स कि एक इस प्लांट का एक दूसरे प्लांट का, तो दो कपलेट की तरह यूज करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जब की लेता है तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं कपलेट। ओके, व्हेन की यूजेस टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, तो जब की कोई दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर यूज करता है देन इट इज कॉल्ड व्हाट, कपलेट। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मीन्स एक इस प्लांट का कैरेक्टर एक इस प्लांट का कैरेक्टर, इन दोनों प्लांट के कैरेक्टर को जब की यूज करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कपलेट। ओके, एंड जितने भी स्टेटमेंट हम लोग की में बोले जाएंगे, मीन्स कि दिस प्लांट इज टॉल, दिस प्लांट इज शॉर्ट, तो जो एक एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, ईच स्टेटमेंट इन की इज कॉल्ड लीड। ठीक है, दिस वन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। व्हाट इज अ लीड? लीड इज व्हाट ईच स्टेटमेंट इन की इज कॉल्ड लीड। कोई स्टेटमेंट मीन्स कि टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को अगर हम लोग कंपेयर करें, एक टॉल ट्री का एक शॉर्ट ट्री का, तो टॉल ट्री वी विल से दिस वन इज टॉल ट्री एंड दिस वन इज शॉर्ट ट्री। तो जो स्टेटमेंट हमने बनाया है इस स्टेटमेंट को इन की में क्या कहेंगे? इट इज अ लीड। ओके, एवरी सेपरेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है एंड जो की में है वो इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, एक इंटेंडेड की, एक ब्रैकेटेड की। इंटेंडेड की में क्या होता है, जितने भी हम लोग सीक्वेंस ऑफ चॉइसेस बनाते हैं, जैसे कि हम इट इज अप टू अस कि विच कंट्रास्टिंग कैरेक्टर विच वी वांट टू स्टडी। सो जो हम लोग यूज करेंगे जो भी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर वो इंटेंडेड की में आएगा। मीन्स इट इज अप टू अस कि अगर हम लोग प्लांट की वेट ले रहे हैं या प्लांट की हाइट स्टडी कर रहे हैं या प्लांट का क्या कहते हैं ट्रांसपिरेशन रेट स्टडी करें या प्लांट की फोटोसिंथेसिस रेट स्टडी करें, तो ये सारी चीजें हम लोग अपने माइंड से सेटअप करेंगे की के स्टडी के लिए, तो दैट वुड बी वी विल कॉल एज इंटेंडेड की। एंड ब्रैकेटेड की, दिस ऑल्सो यूज कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, बट इसमें क्या रहता है, कैरेक्टर्स जो यूज होते हैं वो ऑलरेडी सेटअप रहते हैं उस की के बुकलेट में, वी कैन से उस की के पर्टिकुलर पेज में। ओके, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड सना व्हाट आई एम सेइंग? Yes, sir. Yes. Key is just like any regular register, we can say. We are making any register with right particular point or character. So key is just like that only. Key is what? Two types. Key is of two types. One is intended. Other is what? Bracketed. ठीक. Intended में क्या होता है? We choose different characters. Intended में we choose or provide different contrasting characters. Whereas ब्रैकेटेड में क्या होता है, ब्रैकेटेड में जो भी कैरेक्टर्स रहते हैं आर गिवन एंड आर नॉट सेपरेटेड या आर नॉट डिवाइडेड, नॉट सब डिवाइडेड, वो एक ही में लिखे रहेंगे सब डिवाइडेड। जैसे कि हम लोग चूज करना चाहें कि एक प्लांट के कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को सिर्फ हाइट हम लोग पढ़ सकें, तो इसमें ये इंटेंडेड में आ जाएगा। बट अगर ब्रैकेटेड में क्या है कि वो सारे कैरेक्टर्स एक साथ कंट्रास्टिंग में लिखे रहते हैं। अगर किसी प्लांट के कैरेक्टर को तुम पढ़ना चाहोगी, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर कंपेयरिंग टी प्लांट विद वी कैन से धतूरा प्लांट, सो टी प्लांट एंड धतूरा प्लांट की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक रहेंगी वो दोनों सारी एक साथ लिखी रहेंगी, उसमें हम लोग कोई सब डिवीजन नहीं देख पाएंगे। बट इंटेंडेड में क्या है, इफ वी वांट टू स्टडी द डिफरेंस बिटवीन टी प्लांट एंड धतूरा प्लांट, सो वी कैन चूज द कैरेक्टरिस्टिक की व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक वी वांट टू स्टडी। फॉर एग्जांपल की टी प्लांट लार्जली यूज होता है, धतूरा प्लांट बहुत कम यूज होता है। मींस टी प्लांट क्या है, इट इज अ बेवरेज है, धतूरा क्या है, इट इज एन अल्कोहलिक बेवरेज है। सो डिफरेंस है। सो इंटेंडेड में क्या है कि हम लोग अपने से चूज कर सकते हैं, बट ब्रैकेटेड में क्या है कि सारी कैरेक्टर या सारी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर एक साथ लिखी होती है, वी कैन नॉट चूज अमंग देम। ओके, अंडरस्टूड सना? Yes, sir. Yes. So this much is for your this chapter, taxonomical aid, and this living world is completed now. Are you having any doubt in this whole chapter, whatever I have taught? Yes, sir.
Okay, if you are having any doubt, you can ask. Rules for binomial nomenclature. Its point name of the author appears after the specific epithet, that is at the end of the biological name and is written in an abbreviated form. Yes. तो इसमें देखो, No. हाँ, इसमें जो ऑथर का नेम होता है, नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स फॉर स्पेसिफिक एपिथेट, ये जो ऑथर का नेम है, कौन से ऑथर या कौन से साइंटिस्ट या कौन सा आदमी या जो भी कह लो, जिस प्लांट या जिस एनिमल स्पेसिमेन को डिस्कवर किया है, अगर हमें उसका नाम लिखना है तो हम लोग उसका नाम लास्ट में लिखेंगे। इसमें इफ लगा है कि अगर नाम लिखना है तो, ठीक है, और नाम अगर लिखना भी है तो लास्ट में लिखेंगे। लास्ट में लिखने में कैपिटल लेटर का यूज करेंगे। फर्स्ट इज दिस वन कैपिटल, लेकिन जो कैपिटल लेटर यूज करेंगे ना वो लैटिन में नहीं होगा। दैट इज मीन्स कि वो इटैलिक्स में नहीं होगा, उसको अंडरलाइन नहीं करना है, ना इटैलिक्स में होगा ना उसको अंडरलाइन करना है। एंड दैट थर्ड वन इज कि वो कैपिटल लेटर में स्टार्ट होगा। एंड ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये जो लास्ट में नाम लिखना है, ये कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स में लिखे जाते हैं, कुछ कुछ स्पेसिमेन में लिखे जाते हैं। नॉट एवरी सिंगल स्पेसिमेन या स्पीशीज आर रिटन लाइक दिस। ये सिर्फ और ज्यादा रेफरेंस पर्पस के लिए कि किस ऑथर ने, किस बायोलॉजिस्ट ने या किस जूलॉजिस्ट ने किस चीज को डिस्कवर किया, अगर उसको जानना है या आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है कि आपको कुछ लिखना है उनका नाम, तो हम लोग कैसे लिखेंगे। और ये लिखने का तरीका क्या है? फर्स्ट प्रोसेस की कैपिटल लिखेंगे, जो भी ऑथर या जो भी डिस्कवरर रहेगा, ठीक, कैपिटल यूज करेंगे। सेकेंड क्या है? नॉट इन इटैलिक्स। इटैलिक्स या लैटिन, ठीक है, लैटिन, लैटिन भाषा है, लिखना इटैलिक्स में होता है, मीन्स जब टाइप करते रहते हैं। थर्ड वन इज नॉट अंडरलाइन, जब भी हम लोग लिखेंगे अंडरलाइन। तो ये तीन चीज ध्यान में रख लेना कि पहला क्या, कि अगर ऑथर का नेम हम लगा रहे हैं सामने तो उसको कैपिटल में लिखेंगे, दूसरा उनको इटैलिक्स और लैटिन में नहीं लिखना है, और तीसरा उनको अंडरलाइन नहीं करना है। ठीक, नाउ अंडरस्टूड? And on 6th and 7th point. 6 and 7 point, when a species is transferred or revised, then the name of the original worker is retained but in parenthesis. ओके, इसका मतलब है कि कोई भी स्पीशीज को रिवाइज किया जाता है, यानी कि उसके नेम को रिवाइज किया जाता है, उसको दोबारा नेमिंग किया जाता है। मान लो किसी साइंटिस्ट को ये नेम नहीं पसंद आया और उसको दोबारा नेम कर रहे हैं, तो जब नेम रिवाइज करते हैं तो उसके डिस्कवरर का नेम, ठीक है, उसके डिस्कवरर का नेम नहीं हटाते हैं और उसको पैरेंथेसिस यानी कि ब्रैकेट में लिखते हैं, लाइक दिस। उसको ब्रैकेट में लगा देते हैं पैरेंथेसिस में कि हाँ, इसका जो ओरिजिनल डिस्कवरर है उसका ये था, और उसका ट्रांसफर रिसीव्स का मतलब कि इसका नेमिंग दोबारा किया गया है। इसका जब दोबारा नेमिंग किया गया तो उसका जो ओरिजिनल ऑथर या ओरिजिनल डिस्कवरर उसको नहीं हटाया गया है और उसका नेमिंग कैपिटल से उसको पैरेंथेसिस में लिख दिया गया है। ओके, अंडरस्टूड? ओके, seventh one is no names are recognized prior to those used by Linnaeus in 1753 for plant in species Plantarum and in 1758 for 10th edition of Systema Naturae. इसका मतलब ये है कि इससे पहले 1753 और 1758 प्लांट्स के लिए 1753 स्पीशीज प्लांटेरम के पहले जितने भी नाम दिए गए थे प्लांट्स के, वो नहीं रिकॉग्नाइज किए जाएंगे। इफ एनीवन इज राइटिंग द नेम ऑफ एनी प्लांट बिफोर 1753, दैट नेम ऑफ द प्लांट इज नॉट करेक्ट। ओके, वो रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं है। सेम एज फॉर एनिमल्स। एनिमल्स में 1758 के पहले, यानी कि सिस्टेमा नेचुरली के जो बुक है उसके पहले 1758 में सिस्टेमा नेचुरली का बुक आया था, और उस बुक के पहले जितने भी नेमिंग किए गए थे एनिमल्स की, वो नेमिंग नहीं मानी जाएगी। इफ समवन इज यूजिंग दैट नेम इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड वन। ओके, अंडरस्टूड? प्लांट्स के लिए 1753 में दी गई स्पीशीज प्लांटेरियम की बुक, उससे पहले जितने भी नाम प्लांट स्पेसिमेन के लिए थे वो नेम नहीं वैलिड है। एंड फॉर एनिमल स्पीशीज 1758 एंड सिस्टेमा नेचुरली के बुक से पहले जितने भी नेमिंग किए गए हैं एनिमल्स के, दैट नेम इज आल्सो नॉट रिकॉग्नाइज्ड वन। ओके, पीपल माइट यूज इट, मे बी राइट नाउ आल्सो इन मेनी कंट्रीज पीपल आर यूजिंग इट, बट वो नेम रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। अंडरस्टूड? यस। ओके, These are fewer important points. ये लिखने में बहुत कम ही यूज होता है। ऊपर की जितने पॉइंट्स है वो लिखने में ज्यादा हेल्पफुल करते हैं अगर वी आर राइटिंग द नेम और वी आर टाइपिंग द नेम्स। ओके, एनी अदर पॉइंट इन विच यू आर हैविंग डाउट्स? नो मैम। ओके, सो can I close the chapter or we just revise it once? Okay, let us revise it once and then I'll close the chapter. What have we studied about this chapter? First of all, what a life is, that is complex organization of molecule. एक single zygote cell से कैसे पूरी life की formation होती है, that is what we have studied. And what can be called a living? Living means what? Being able to live alive. We are being able means feeling alive. Alive means कि एक बॉडी के सारे फंक्शंस प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं, उसको बोलते हैं मीन्स बीइंग अलाइव। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज लिविंग। कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग बीइंग इज व्हाट?
कि एक लिविंग बींग्स में कैसे हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। सो लिविंग बींग्स के अंदर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक पाई जाएंगी और नॉन लिविंग के अंदर कौन नहीं पाया जाएगा, इसको हम लोग स्टडी किए, लाइक डिफाइनाइट शेप, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, अडैप्टेशन, एवोल्यूशन, एजिंग, डेथ एक्सेट्रा। एंड आउट ऑफ दिस सम आर व्हाट defining features like metabolism, consciousness, defining properties है, एंड रेस्ट क्या है, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है, मींस कि इन सारी चीजों में थोड़ी थोड़ी एक्सेप्शंस हैं। नेक्स्ट वी स्टडीड दीज कैरेक्टरिस्टिक इन डिटेल की डिफाइनाइट शेप एंड साइज कैसे होती है, किसमें क्या एक्सेप्शंस हैं। ओके, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्या है, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स को और डिटेल में वही चीज है, एजिंग, डेथ, हाउ वी कैन से दैट डेथ इज इनएविटेबल या डेथ इज द नेचुरल प्रोसेस। दिस क्वेश्चन आर गिवन इन असाइनमेंट आल्सो, हाउ वी कैन से सना दैट डेथ इज इनएविटेबल, you have written the answer. Yes, ma'am. That's considered a regulatory process on the earth because it avoids overcrowding caused by continuous reproduction. Yes, ओवरक्राउडिंग को भी कंट्रोल में रखता है एंड अपना जो रोल है एक इन्वायरमेंटल साइकिल में उसको भी पूरा करता है। मींस एक सिंपल सा रूल है कि किसी भी चीज को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को बर्थ लेना है, उसको अपना पूरा रोल प्ले करना है, जुवेनाइल स्टेज आना है, रिप्रोडक्टिव स्टेज आना है एंड ओल्ड स्टेज आना है, एंड देन पूरा अपना रोल इन्वायरमेंट में प्ले करना है। एंड जो नेचुरल इन्वायरमेंट कंसिस्टेंसी है या उसकी होल्डिंग कैपेसिटी, उसको ऑलमोस्ट मेंटेन करके रखना है सेम वे में, इसलिए डेथ क्या है, इनएविटेबल है। ओके, नाउ वी हैव स्टडीड व्हाट सिस्टेमिक्स क्या है, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कंपैरेटिव है क्या, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को कंपेयर करना, उनकी एनाटॉमी को देखना, बायोकेमिस्ट्री को देखना, एंड अकॉर्डिंग टू all these things we study and we identify living organisms and we divide them according to their characteristics. Okay, this is what systemics. Now taxonomy क्या है, taxonomy में वो होते हैं जितने भी principles और जितने भी steps हैं classification में, उसको हम लोग बोलते हैं taxonomy. Taxonomy word was given by A.P.D. Candolle, which include what, identification, nomenclature and classification. Identification में क्या है, किस plants को पहचानना, उनको position बताना, उनको एक उनकी particular जगह देना, वो identification में आएगा। फिर classification क्या है कि एक particular organism या plant species को या animal species को उनके characteristics के हिसाब से उनको उनकी जगह पे क्लासिफाई करना। ठीक, बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब मोस्ट लार्जर, जो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट क्लासिफिकेशन वो क्या है, आर्चिया, बैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। ओके, यूकेरिया, इन्हीं तीन चीजों में पूरी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ अर्थ इज डिवाइडेड। मेजर डिस्टिंक्शन है, आर्चिया में क्या है, आर्कीबैक्टीरिया एक किंगडम है, बैक्टीरिया में क्या है, एक किंगडम यूबैक्टीरिया, एंड सेकंड यूकेरिया में क्या है, 4 किंगडम्स हैं, और यही 6 किंगडम्स जो हैं पूरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जितने भी अर्थ पे प्रेजेंट हैं। ओके, नाउ नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर क्या है, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या लिविंग बीइंग को हम लोग कैसे नेम करते हैं, क्या क्या प्रोसेस होना चाहिए, उनके कॉमन नेम्स क्या हैं, उनके साइंटिफिक नेम क्या है, और नेमिंग के लिए कौन सा सबसे सुटेबल नॉमेनक्लेचर यूज हुआ है, दैट इज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। And binomial nomenclature is given by what, Linnaeus, and he is also called as founder of binomial nomenclature. उन्होंने अपनी बुक सिस्टेमा नेचुरली में सारे प्लांट और एनिमल स्पेसिमेन को नॉमेनक्लेट किया था। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज द रूल, रूल क्या है कि हम लोग जब भी लिखें तो उसको इटैलिक्स या लैटिन भाषा में लिखें, और टाइप करें तो इटैलिक्स में टाइप करें, और अगर हम लोग हैंड रिटन लिख रहे हैं तो उसको हम लोग अंडरलाइन करेंगे। फिर जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट कंटेन रहता है, 2 नेम है, एंड स्पेसिफिक एपिथेट स्मॉल में रहेगा, जेनरा कैपिटल में रहेगा। फिर वही चीज ऑथर का नेम लिख रहे हैं अगर लास्ट में, तो उसको कैपिटल में लिखेंगे, इटैलिक्स में नहीं लिखेंगे और अंडरलाइन नहीं करेंगे। फिर यही सारे रूल्स आगे भी हैं। ओके, फिर टैक्सोनॉमी में क्या है, टैक्सोनॉमी प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीजर, जिसको हम लोग फॉलो करके एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में और डिटेल में स्टडी करते हैं। व्हाट इज इट, कैटेगरी, कैटेगरी मींस हायरार्की, जितने भी स्टेप्स हैं या जितने भी कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं उसको बोलते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। फिर टैक्सॉन क्या है, जितने भी एक कैटेगरी में ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं, एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज व्हाट, टैक्सॉन। लाइक कि अगर एक स्पीशीज है तो स्पीशीज के अंदर जितने भी यूनिट रखे गए हैं उस एक यूनिट को क्या बोलेंगे, टैक्सॉन। टैक्सोनॉमिक हायरार्की में वही किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, दीज 7 कैटेगरी आर मेन टैक्सोनॉमिक हायरार्की, जिसके अंदर हम लोग सारे प्लांट और एनिमल स्पीशीज को पढ़ते हैं। फिर टैक्सोनॉमिक हायरार्की में वी हैव स्टडीड आल्सो दैट इज स्पीशीज, प्लांट, एनिमल, देयर इज आल्सो सब स्पीशीज, सुपर फैमिली, सब ऑर्डर, एंड हाउ वी राइट देम, वी हैव स्टडीड दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस। एंड कमिंग बैक टू टैक्सोनॉमिकल एड्स, टैक्सोनॉमिकल एड्स व्हाट, जितने भी टेक्निक्स और प्रोसीजर्स और रूल्स हैं एक प्लांट और एनिमल स्पीशीज और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं उनको प्रिजर्व करके रखने के लिए, उनकी स्टडी करने के लिए, उनको कंजर्व करके रखने के लिए, ये सारी चीजें किसमें आएंगी, टैक्सोनॉमिकल एड्स में आएंगी, जिसमें क्या है, हर्बेरियम है, बोटेनिकल गार्डन है, म्यूजियम है, की, मोनोग्राफ, जूलॉजिकल पार्क, फ्लोरा, कैटलॉग एंड मैनुअल्स। और वी कैन से कि इतनी ही चीजें हैं जो टैक्सोनॉमिकल एड्स में यूज की जाती हैं। ओके,
हर्बेरियम इज व्हाट कि प्लांट स्पेसिमेन को कलेक्ट किया जाता है, ड्राई किया जाता है और प्रेस्ड करके उनको डस्ट फ्री एंड बैक्टीरियल प्रूफ एरिया में रखा जाता है। क्यों? फॉर देयर स्टडी। किसी भी प्लांट के स्पेसिमेन को हम लोग डायरेक्ट एक हर्बेरियम शीट उठा के जान सकते हैं उसके बारे में, कहाँ से लिया गया है, उसकी क्या फैसिलिटी, क्या कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक। बोटेनिकल गार्डन में क्या है, लिविंग प्लांट्स आर केप्ट फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशनल पर्पस के लिए, रिक्रिएशनल के लिए मतलब एंटरटेनमेंट के लिए। सेकंड क्या है कि उसकी स्टडी आराम से की जा सके। थर्ड वन इज व्हाट कि इसमें भी प्लांट स्पेसिमेन में भी जिसकी एक्सटिंक्शन का खतरा है उसको भी टेक केयर किया जा सके। फिर म्यूजियम में क्या है, म्यूजियम्स में प्लांट और एनिमल स्पीशीज वो सारे रखे जाते हैं जिनको हम लोग ड्राई और हर्बेरियम में नहीं रख सकते, तो उसको म्यूजियम में रखा जाता है। म्यूजियम में भी रखा जाता है क्या, एक पर्टिकुलर कंटेनर में उनको रखा जाता है सो दैट दे कैन बी स्टडीड फॉर देयर डिफरेंस पर्पस और फ्यूचर यूज के लिए भी रखा जाता है। की क्या है, टैक्सोनॉमिकल एड है, प्लांट और एनिमल स्पेसिमेन को, एक प्लांट को दूसरे प्लांट या एक एनिमल को दूसरे एनिमल से सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस के बेसिस पे स्टडी कैसे करें वो की में लिखा जाता है। मोनोग्राफ इज व्हाट, मोनोग्राफ क्या है, एक टैक्सॉन या एक बायोलॉजिकल और टैक्सोनॉमिक स्टडीज के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, मोनोग्राफ का यूज करते हैं, जिसमें जितने सारे प्लांट और एनिमल स्पीशीज का एक गिवन डेटा दिया रहता है। फिर जूलॉजिकल पार्क क्या है, जूलॉजिकल पार्क और व्हाट, नेचुरल एनवायरनमेंट में प्लांट एनिमल स्पीशीज को रखा जाना, उनको ह्यूमन ऑब्जर्वेशन के अंदर उनकी हैबिटेट और बिहेवियर को पढ़ना, उनकी ब्रीडिंग हैबिटेट को अच्छा करना, ये सारी चीजें जूलॉजिकल पार्क के अंदर आती हैं। फ्लोरा इज व्हाट, सोर्स है एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का। by using the herbarium sheet flora is made and flora is made for what कि एक प्लांट के टैक्सोनॉमी को पढ़ सके, उसके नॉमेनक्लेचर को पढ़ सके, उसमें क्या क्या डिस्क्रिप्शन दिया है, ये सारी चीजें हम लोग को फ्लोरा से पता चल सके। कैटलॉग इज व्हाट कि कोई प्लांट क्या है, वो कहाँ पाया जाएगा, उसकी क्या वेराइटी है, ये सारी चीजें कैटलॉग में मिल जाएंगी। मैनुअल्स आर ऑल्सो लाइक दिस कि पर्टिकुलर प्लांट में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो किस जगह मिल सकता है, ये सारी चीजें भी मैनुअल्स में पाई जाएंगे। कैटलॉग्स और मैनुअल्स आर ऑलमोस्ट द सेम, ओनली अ लिटिल बिट डिफरेंस इज देयर। ओके, now this class is over and this chapter is completed. Do you want me to take test of one chapter or two chapters combined?